Okay, so thank you very much. Today is Republic Day, so I start my lecture from जन गण मन राष्ट्रीय गीत एंड इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा कि हम जन गण मन से ये आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद आप सभी का. Okay, so today we start our lecture and again we start from the yesterday lecture. Already we up to the yesterday we discussed we have the lamina. In the yesterday lecture we discussed we have the lamina and that lamina is what? That lamina is in the yesterday lecture we discussed that lamina is inclined to one plane and perpendicular to the other plane. Already we discussed in the yesterday lecture that lamina is inclined to one plane and that is also perpendicular to the other plane. Clear? Okay. So in the yesterday lecture we discussed the two cases basically. In the first case we assume the lamina is what? In the first case we assume the lamina is perpendicular to HP as well as that is parallel to VP. So in that case we assume the lamina is perpendicular to HP and parallel to VP, and we take the case of hexagonal lamina in the yesterday lecture. So in that case we have the hexagonal lamina and that is perpendicular to HP as well as parallel to VP. क्लियर. सो वर्टिकल प्लेन के साथ पूरा लैमिना जो है वो पैरेलल है. यू कैन सी हियर द होल लैमिना इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन. क्लियर. एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्लियर. सो इन दैट केस वी अज्यूम द लैमिना इज फर्स्ट पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP. Or as per the concept, the lamina is perpendicular to VP and parallel to HP in the yesterday case number 1. Clear? Okay. So in that case already we discussed when the lamina is parallel to any plane, then its two shape lie on it, and when we start the problem of lamina, then always start from its true shape and size. That may be lie on any of the principal plane, that may be lie on HP, maybe on VP, or maybe on PP. Clear? So we start from its true shape and size. So in that case when the lamina is parallel to VP, then definitely its true shape on VP. Clear? So true shape VP पे लाएगी, and in the top view when the lamina is perpendicular to any plane, then that is just like a line on that plane. So its front view as a straight line. So in that case तो इसका top view as a straight line, and in that case its front view is as in true shape. Clear? And second case we discussed in the yesterday lecture, the lamina is inclined to VP as well as perpendicular to HP. So when the lamina is inclined to any plane, so when the lamina is inclined to any of your respective plane, then they are drawn two stages. In the first stage we assume the lamina is not inclined. In the first stage we assume the lamina is not inclined to the principal plane, to the respective given plane. So in that case firstly what we assume the lamina is parallel to the inclination plane, because जब तक हम उसको parallel assume नहीं करेंगे उसकी true shape हमारे पास नहीं आएगी, और जब तक उसकी true shape नहीं आएगी तब तक हम कभी भी उसका जो है वो प्रॉब्लम को सही बेस से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. तब जब तक ट्रू शेप नहीं लेंगे, क्योंकि तब तक क्या होगा कि उसका कितना कंप्रेस्ड व्यू एक्चुअल में नजर आएगा वो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो ड्रॉ नहीं होगा. क्लियर. सो फॉर फाइंड आउट इट्स कंप्रेस्ड व्यू, फर्स्ट वी अज्यूम द लैमिना इज पैरेलल टू द इंक्लिनेशन प्लेन. ठीक है. कंप्रेस्ड व्यू क्यों आएगा? बिकॉज व्हेन द एंगल इज इंक्रीज्ड then the shape of lamina is decreased. Already in the yesterday lecture we discussed about that. Clear? So in that case firstly we assume the lamina is what? Firstly we assume the lamina is parallel to VP. जब हमने पहली स्टेज में इसको assume किया कि लैमिना VP के साथ पैरेलल है. क्लियर. तो उस केस में फ्रंट व्यू आपको यही नजर आया like this.
क्लियर, और टॉप व्यू एक एच व्यू एक लाइन नजर आया। और सेकंड केस में अब जब हमने ये अज्यूम किया कि लैमिना इज इंक्लाइंड टू वीपी, लैमिना वीपी के साथ अब एंगल बना रहा है। नाउ द लैमिना इंक्लाइंड टू वीपी लाइक दिस, सो यू कैन आल्सो सी in the camera the shape of the lamina now that is compressed. Here the shape is what? True. Here the shape is what? True, because that is parallel to your camera. Clear? But here the lamina is inclined. So due to that the shape is what? Compressed, because that is inclined to your camera. Clear? So it means what we follow from here, when the angle of the lamina is increased then the shape of lamina is decreased. तो यही डिक्रीज शेप हमने सेकंड स्टेज में फाइंड आउट करनी है। सो फॉर फाइंड आउट दैट इन द फर्स्ट स्टेज वी अज्यूम द लैमिना इज पैरेलल टू द इंक्लिनेशन प्लेन, वीपी के साथ इंक्लाइंड हो रहा था पहली स्टेज में, तो हमने ये अज्यूम किया कि लैमिना वीपी के साथ पैरेलल है फर्स्ट स्टेज में, और इस केस में ट्रू शेप फ्रंट में दिख गया और एच व्यू टॉप में नजर आ गया। सेकंड केस में लैमिना जब इंक्लाइंड हो रहा है, एक चीज और याद रखो, मैक्सिमम लैमिना कितना दिख रहा है टॉप से, क्रॉस सेक्शन, एंड दैट क्रॉस सेक्शन इज व्हाट? दैट इज द कॉर्नर टू कॉर्नर। That cross section is what? That is the corner to corner. Suppose इस corner से from this corner to this corner. Clear? So lamina is like a line in the top view because the lamina is perpendicular to HP. Clear? So lamina top view में एक H view एक लाइन की तरह नजर आएगा, और जब मैंने लैमिना को इंक्लाइन किया तो यही जो लाइन हमें टॉप व्यू में एक H की तरह नजर आ रही थी, अब वही लाइन VP के साथ एंगल बनाती हुई नजर आई। Clear? From which view? From the top view on HP. And when we rotate the HP into what? Clockwise direction, तो वो लाइन हमें फिर कहाँ पे नजर आएगी? Below XY. Because when the line is inclined to a plane, जब कोई भी already we discuss about that, कि जब कोई भी लाइन किसी प्लेन के साथ inclined होगी like that suppose, clear? तो ये inclined है किसी प्लेन के साथ ऐसे, तो जब इसका टॉप व्यू लिया तो टॉप व्यू कहाँ है? HP पे। क्लियर? और HP को जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो लाइन हमें नीचे XY के साथ एंगल बनाती हुई नजर आएगी लाइक दिस। क्लियर? तो इट मींस इन दैट केस व्हाट वी डू, इन दैट केस फर्स्टली वी ड्रॉ द एंगल ऑफ द लैमिना इन द टॉप व्यू। इस केस में सबसे पहले हमने लैमिना का टॉप व्यू में एंगल ड्रॉ किया। वी मेक द एंगल एंड दैट एंगल इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सपोज ही सेड द लैमिना मेकिंग द एंगल, द होल शीट ऑफ द लैमिना मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद वीपी। क्लियर? तो वो जो एक लाइन नजर आ रही थी वो वीपी के साथ 45 डिग्री का एंगल नजर बनाती हुई आई एचपी पे, और जब एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो लाइन नीचे एंगल बनाती हुई नजर आई लाइक दिस। क्लियर? सो फॉर दैट फर्स्टली वी ड्रॉ द एंगल ऑफ द लैमिना इज 45 डिग्री विद द एक्सवाई लाइन, क्योंकि जहां एचपी खत्म हो रहा है नीचे कौन सी लाइन है? पीछे कौन सी लाइन है? एक्सवाई। ऐसे ही जहां वीपी खत्म हुआ उसके नीचे कौन सी लाइन है? एक्सवाई। तो ये लाइन अगर VP के साथ एंगल बना रही है तो वो ये आपको सपोज ऐसे एंगल बना रही है तो XY से एंगल बनता हुआ नजर आएगा HP पे, रोटेट किया तो नीचे। सो इट मींस वी मेक द एंगल 45 डिग्री फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया बिलो द XY लाइन लाइक दिस। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी डू, जितना लैमिना आपको यहाँ दिख रहा था, जितना लैमिना आपको यहाँ फ्रंट में दिख रहा था, मैक्सिमम दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम इट्स टॉप व्यू, और वही लाइन HP पे आई, इसलिए सेम डिस्टेंस हमने इस एंगल के ऊपर कट कर दिया लाइक दिस। क्लियर? तो सेम डिस्टेंस कितना दिख रहा था? C to F. So we cut here C to F. C to F. That is the projection of F, and that is the projection of C in the top view. Clear? But in that case, he also fixed one thing. You can see here. He also fixed in that case the corner of the lamina. This corner of the lamina, that is 20 mm in front of VP. तो ये डिस्टेंस 20 mm है इस कॉर्नर का। इट मींस सपोज द स्केल इज 20 mm फ्रॉम माय बॉडी इज सपोज एज ए VP, तो दैट इज 20 mm फ्रॉम VP। तो जब मैं लैमिना को इंक्लाइन करूंगा तो ये 20 डिस्टेंस फिक्स है, और ये 20 डिस्टेंस कहां पे आ रहा है? ऑन द कॉर्नर C, ऑन द कॉर्नर C। क्लियर? सो वी फिक्स द C इज हियर, एंड आफ्टर फिक्सिंग द C वी टिल्ट द लैमिना। क्लियर? तो इट मींस इस केस में क्या हुआ? इस केस में हमने पहले C को 20 डिस्टेंस पे फिक्स किया। इन दैट केस आफ्टर दैट वी इंक्लाइन द लैमिना, we fix the C is here first on 20. This distance is from here XY to here, that is 20, because that is 20 mm in front of VP. After that we give the angle. After that we will give the angle, and that angle in which view? That angle is in which view? That is seen from its top view.
and we know the top view angle always denoted with what? Always with angle phi. So you can write here the angle 45 degree here or maybe here. So you can sorry. So you can write here the angle the angle is 45 degrees VP like this. Clear? So after fixing the angle, we fix the angle 45 degree, we fix the point C, and after fixing the point C, we open the compass C2F, cut here. Again we open the compass C2DB and cut here. Again we open the compass C2AA and we cut here. So we cut the all points. So after taking the all points, we can draw the 90 degree projection for find out its compressed shape in the front view on VP. On which plane? VP. Clear? And that is which view? Its front view now. So for that we draw the perpendicular projection from its top view and horizontal projection from its front view, and where the points are meet to with same category, it means the C from here and the C from here. So we locate the C. The point D from here and the D from here, we locate the D. The point E from here and E from here, we locate the point E. The point F from here and from side, we locate the point here F. And here A and D both are where? Here A and B both are on XY line. So due to that, where the A is cut on XY line, there A, and where the B is cut on XY, there locate the B. So after locating all points, meet the points in straight line A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A, and A to again B. So this is the compressed shape we can find in the front view of the second stage when the lamina is inclined to VP as well as perpendicular to HP, and he also fixed one of its edge AB, one of its edge A and B. This edge that on HP. तो अब भी आपको ये HP पे XY पे ही नजर आ रहा है, तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी कि जो काम अभी तक आप कर रहे हो दैट इज द करेक्ट. क्लियर? ओके, तो यहां तक हमने कल किया था. आज हम इसको और आगे लेके चलेंगे केस को, आगे स्टेप में करेंगे इसको. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द स्टेप नंबर 3, he said what? He said lamina inclined to both. तो जैसे लाइन inclined to both थी, ऐसे lamina inclined to both इसका जो है वो केस पे जाके ये प्रॉब्लम रुकेगी. So lamina is inclined to both, but you can say the concept of that chapter यहीं पे जाके वो रुकेगा. when he said the lamina is inclined to both, inclined to HP as well as inclined to VP. क्लियर? तो आपका केस मेन यहाँ तक अगर प्रॉब्लम आई आपको एग्जाम में, तो ये प्रॉब्लम आपको 10 नंबर की आएगी. when he said the lamina inclined to both. क्लियर? लेकिन अगर सेकंड स्टेज तक आई तो ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स तक आएगी. so when he said the lamina is inclined to one and parallel to other, तो ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ 5 या 6 नंबर तक की आएगी. लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी में यही प्रॉब्लम को 10 नंबर की भी डाल रहे हैं आजकल. लेकिन अगर उसने इस लामिना में कब प्रॉब्लम डालनी होगी तो वो इंक्लाइन टू बोथ ही डालेगा. और करेक्ट 10 मार्क्स की जो प्रॉब्लम बनती है वो इंक्लाइन टू बोथ ही बनती है बेसिकली. क्लियर? सो व्हेन ही सेड द लामिना इंक्लाइन टू बोथ, inclined to both means inclined to HP as well as he said the lamina is inclined to VP. क्लियर? तो अब ये स्टेटमेंट होगी कैसे, इसी स्टेटमेंट को लेके आगे चलते हैं ताकि आपको समझना ज्यादा आसान रहे. इन द सेम स्टेटमेंट मींस अप टू हियर ही ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट जितना हमने कर दिया था. वी हैव a lamina we have a regular hexagonal lamina A B C D E F and one of its edge is 30 mm and one of its edge lie on HP. One of its edge lie on HP. After that, the whole lamina is perpendicular to HP and inclined to VP at 45 degree. तो यहाँ तक ऑलरेडी प्रॉब्लम गिवन है. यहाँ तक ऑलरेडी जो प्रॉब्लम गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ भी कर दिया था. अब इस प्रॉब्लम में अगर इंक्लाइन टू बोथ करना है उसने, ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम में अगर इंक्लाइन टू बोथ करना है उसने,
क्लियर। तो अब वो इसको इंक्लाइन टू बोथ को आगे इस प्रॉब्लम में कैसे लेके जाएगा, क्लियर। जब वो यानी से द लैमिना इज इंक्लाइन टू एचपी आल्सो, ठीक है। अब वो एचपी के साथ भी लैमिना को इंक्लाइन करना चाह रहा है, क्लियर। सो व्हेन ही से, अब ध्यान से समझना, व्हेन ही से द लैमिना इज इंक्लाइन टू बोथ means now he want to ask the lamina is also inclined to what, he want to ask the lamina, your lamina is also inclined to HP। तो अभी तक, अब ये चीज समझो, अभी तक आपका पूरा लैमिना HP के साथ किया था, इस चीज को ध्यान से समझो। अभी तक पूरा लैमिना आपका HP के साथ किया था, that is perpendicular, that is what, that is perpendicular to HP, clear। But now he said the lamina is also inclined to HP, clear, lamina also inclined to HP। so it is in that case the lamina is inclined to HP like this। so now the lamina makes the angle with HP, ये मेरी तरफ भी हो सकता है, no doubt, like this, clear। तो suppose मेरी तरफ अगर मैं कहूं कि lamina making the angle this one with HP, clear, और ये आपकी तरफ भी हो सकता है, इधर की तरफ lamina making the angle this one with HP, you follow। तो मैं आप ही की तरफ करता हूं बिकॉज यू आर द ऑब्जर्वर, आपको इधर से अच्छी तरह नजर आ रहा होगा, ऐसे लैमिना इंक्लाइन टू एचपी, क्लियर। तो अगर डेफिनेटली इंक्लाइन टू एचपी करूंगा तो ये नीचे की तरफ प्रॉब्लम जाएगी, अगर मैं मेरी तरफ करता हूं ऐसे तो ये इधर आएगी। चलो मैं ऐसे करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह नजर आए। लैमिना नाउ मेकिंग दिस एंगल, ये ध्यान से समझो, जैसे इधर एचपी से ये एंगल बनाएगा ना, ऐसे अगर मैंने अपनी तरफ कर दिया तो ये इधर ये एंगल एचपी से बनाएगा, दिस वन। It means you can see here, ऐसे नहीं आप लैमिना परपेंडिकुलर नहीं है, now the lamina making the angle this one, ऐसे एंगल ये बना रहा है, this angle from HP, clear। so you are the observer, तो आपके सामने कर देता हूँ ऐसे। now the lamina 45 degree with one of its edge। अब वो क्या कह रहा है कि उसका एक एज जो है, अब ध्यान से समझना इस बात को, उसका एक एज लैमिना का जो है वो VP से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। he is asking this thing first कि उसका, मैं इसको थोड़ा आगे कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए, कि उसका एक एच भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है VP से, क्लियर। सो ये वाला जो एच है वो VP से 45 डिग्री का एंगल बना गया ऐसे। एंड आफ्टर दैट योर होल लैमिना इज इंक्लाइंड टू HP, सपोज अगेन एट सपोज आई गिव द एंगल 30 डिग्री। तो ये HP के साथ 30 डिग्री का लैमिना, मैं इधर करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा वहां से। तो ये HP के साथ लैमिना आपका 30 डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा है, सपोज लाइक दिस। नाउ दिस टेक द एंगल विद HP 30 डिग्री। सो नाउ ही से फाइंड आउट इट्स बोथ कंप्रेस्ड शेप इन द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। बोथ कंप्रेस्ड शेप दोनों में क्यों आएगी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में कंप्रेस्ड शेप लैमिना की क्यों आएगी, बिकॉज नाउ द लैमिना मेकिंग द एंगल विद बोथ व्यूज, HP एज वेल एज VP, HP as well as VP, ओके। तो अब इस चीज को, एक चीज यहां समझो कि अगर लैमिना दोनों के साथ एंगल बना रहा है, दोनों के साथ एंगल बना रहा है, तो सबसे पहले तो बात ये कि दैट केस ड्रॉ इन नॉट वन स्टेज, नॉट ओनली इन टू स्टेज, दैट केस ड्रॉ नाउ इन 3 stages। When the lamina is inclined to both plane, then that case draw in 3 stages। तो यहाँ पे आप जो हम फाइंड करने जा रहे हैं here, तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी आपके पास, now this is the third stage। तो ये आपके पास तीसरी स्टेज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। When the lamina is inclined to both HP as well as VP, now they are draw in 3 stages, clear, ओके। तो अब ये तीसरी स्टेज करने जा रहे हैं, ओके। अब ये चीज एक और समझो कि जब हमने इंक्लाइन टू बोथ करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सेम वैसे। इट मींस दैट केस ड्रॉ इन 3 स्टेजेस का मतलब यही है कि सबसे पहले हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लैमिना इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो इस केस में पहली स्टेज सेम ऐसे ही बनेगी जहां जो हम बना चुके हैं, ठीक है। व्हेन यू सेड द लैमिना इंक्लाइन टू बोथ, तो पहले ऐसे ही बनेगा कि इंक्लाइन टू VP और परपेंडिकुलर टू HP है, तो ये स्टेज ऐसे बना दी, ठीक है। सेकंड स्टेज में वो कह रहा है इंक्लाइन टू VP,
तो सेकंड स्टेज में अब हमने इंक्लाइन टू वीपी कर दिया, इट मींस उसको इंक्लाइन टू वीपी ऐसे कर दिया, दैट्स मेक द एंगल विद वीपी लाइक दिस एंड वी कैन फाइंड आउट इट्स कंप्रेशन। क्लियर? तो ये हमने एंगल होने के कारण, अब ये चीज ध्यान देखना, यहाँ पे ध्यान देना अच्छी तरह। इस चीज को स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, टीचर भी क्या देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे रट्टा नहीं लगाना, ऐसे करना क्यों है, उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है। नॉर्मली यहाँ करते क्या, हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेज के कंप्रेस्ड व्यू को उठा के हम थर्ड स्टेज के फ्रंट व्यू में रीड्रॉ कर देते हैं, शफल कर देते हैं। क्लियर? लेकिन ये बता दिया जाता है कि हम शफल कर देते हैं, जैसे मैंने बता दिया, लेकिन ये बहुत कम टीचर बताते हैं कि शफल क्यों करते हैं, रीजन क्या है। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट्स को बताओगे नहीं व्हाट वी डू दिस थिंग एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तब तक वो उसके दिमाग में रट्टा ही रहेगा। जब आप उसको बता दोगे कि इसका रीजन क्या है शफल करने का, तब डेफिनेटली वो उस चीज को फॉलो भी करेगा ढंग से। क्लियर? तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं कि हमने इसको शफल क्यों करना है और शफल कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो शफल क्यों करना है, जैसे फर्स्ट शफल क्यों करना है। ओके, तो शफल इसलिए हमने करना है क्योंकि जब लैमिना वीपी के साथ एंगल बना रहा है, जब लैमिना वीपी के साथ एंगल बना रहा है, क्लियर? कैमरा ऑफ कर दूंगा, नहीं तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूं लेक्चर। ओके, सो व्हेन द लैमिना मेकिंग द एंगल विद वीपी, तो इतना काम आपने कर दिया, ध्यान से समझो। When the lamina making the angle with VP, you find its compressed shape and you find its top view both like this. इतना काम आपने कर लिया। But now when he said the lamina is what? Now he said the lamina inclined to VP. तो जब हमने लैमिना को inclined to HP और जब हमने लैमिना को inclined to HP करना है, तो जितना हमने काम कर दिया उतना as it is fix करेंगे। समझ आई बात? जितना हमने काम कर लिया उसी को आगे लेके हम चलेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि इसलिए हमने ये जो कंप्रेस शेप इतना काम करने से फाइंड आउट कर ली थी कंप्रेस शेप, इसी कंप्रेस शेप को यहां पे हम रीड्रॉ करेंगे। क्लियर? क्यों रीड्रॉ करेंगे? क्योंकि हमने इंक्लाइन टू वीपी से करने से, ध्यान से फिर समझो, इंक्लाइन टू वीपी करने पे हमने ये कंप्रेस शेप फाइंड आउट कर ली थी। अब जब इंक्लाइन टू हमें एचपी करना है, देखना जब इंक्लाइन टू एचपी करना है तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले फिर पैरेलल टू वीपी करते फिर इंक्लाइन टू एचपी होगा, नो, ऐसा फिर प्रॉब्लम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया आपने। तो इसीलिए जितना हमने काम यहां तक कर दिया इंक्लाइन टू वीपी का, उसी को वहां तक फिक्स करके लैमिना को फिर हम एचपी के साथ इंक्लाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द फाइनल शेप्स व्हेन द लैमिना इंक्लाइंड टू बोथ। आपने दोनों फाइनल व्यू फाइंड आउट करने हैं फ्रंट और टॉप का, जब लैमिना दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइन हो रहा है एचपी एज वेल एज वीपी, एचपी एज वेल एज वीपी। क्लियर हुई है बात? तो इसलिए आपको जितना काम आपने यहां तक कर दिया है उस काम को आगे लेके चलेंगे। सेम ऐसे ही होता है ना, लॉजिक भी है इसका। कोई साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर एक रिसर्च कर दी कि वो पर्टिकुलर रिसर्च यहां तक आपने कर ली है पर्टिकुलर रिसर्च, और अब आपने दूसरा वो साइंटिस्ट की बाय भगवान ना करे उस साइंटिस्ट की डेथ हो गई सपोज, अब जो दूसरा का साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है तो वो जहां तक उसने रिसर्च किया उसको लेके आगे चलेगा। ये नहीं है कि वो दोबारा फिर रिसर्च शुरू से शुरू कर देगा, क्योंकि जहां तक उसने फाइंड आउट कर ली ये चीजें उन चीजों को लेके आगे चलेगा। अगर वो दोबारा शुरू से लेके चलेगा तो फिर तो आज तक कोई भी चांद पे पहुंचता ही नहीं। फॉलो ना? तो एक साइंटिस्ट ने जहां तक रिसर्च कर दी है, राइट्स ब्रदर ने रिसर्च कर दी थी एरोप्लेन के थोड़ा बेस की रिसर्च कर दी थी, तो अगला साइंटिस्ट उसको आगे लेके चला, ठीक है, तभी एरोप्लेन हवा में उड़ पाया। अगर दोबारा हर साइंटिस्ट शुरू से रिसर्च करता तो वही का नहीं रुका रहता। तो इट मीन जितना काम, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आप लोग को, तो जितना काम हमने अभी तक कर लिया, मींस अभी तक हमने क्या काम किया था, इंक्लाइन टू वीपी। तो जब इंक्लाइन टू वीपी कर लिया, अब जब इंक्लाइन टू एचपी करना है तो जितना काम हमने किया वहीं तक उसको फिक्स करके फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे, तभी वो इंक्लाइन टू एचपी हो पाएगा। उसी काम को हम आगे लेके चलेंगे,
then that's inclined to HP. Now it's make the angle with the HP. You can see on the camera. And this edge now, this edge making the angle with VP at what? At 45 degree. Clear? And now your whole lamina, अगर मैं इसको आपकी तरफ घुमाने की कोशिश करता हूँ टेबल को, now you can see the whole lamina is what? The whole lamina making the angle with HP at 45 degree. जहाँ HP at 30 degree suppose this angle. Clear? ये HP के साथ एंगल बनाना है और इधर से ये जो एच है उसका एच VP के साथ एंगल बनाना है। इसमें दो चीजें हो रही हैं, एच VP के साथ एंगल बना रहा है, कंफ्यूज मत होना, और पूरी लामिना की जो शीट है वो HP के साथ एंगल बना रही है। नाउ इसे फाइंड आउट इट्स फाइनल फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू। मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं और कैसे हो रहा है। क्लियर? अब हमने फाइनल ड्रॉ कैसे करना है, तो इट मींस अगेन वी शफल, जितना काम HP के साथ एंगल बना दिया था VP के साथ, तो ये कंप्रेस शेप नजर आ गई थी। इट मींस फॉर द फाइनल व्यू वी शफल दैट कंप्रेस शेप इन द थर्ड स्टेज फ्रंट व्यू एट द गिवन एंगल। तो ये एंगल अब आप इसमें लामिना ने किसके साथ बनाया, देखो इधर ये एंगल वो कहाँ बन रहा है, वो एंगल HP के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से? XY से ऊपर की तरफ, जहाँ HP नीचे XY है, तो XY से ऊपर की तरफ ये एंगल जा रहा है। Clear? So due to that we make first that angle. Suppose he said the whole sheet of the lamina making the angle 30 degree with VP. तो सबसे पहले हमने 30 डिग्री का एंगल जो है वो XY से मींस HP से ऊपर उठा लिया। Suppose that is 30 degree like this. That is 30 degree like this. Suppose. Now the student again having problem. He said what is the distance between the first stage to the second stage? So already we discussed that thing in yesterday lecture कि आपने distance given नहीं है, then you can take any distance 10, 20, 15, एक particular distance छोड़ देना है ताकि ये थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज के ऊपर कंसाइड ना हो। बस इतना का डिस्टेंस आपने छोड़ देना है, ज्यादा भी नहीं। ये नहीं कि आप यहाँ से बनाओ फिर ड्राइंग शीट के ऊपर स्पेस वेस्ट होगी और आप बाकी काम जो है वो नहीं ड्रॉ कर पाओगे, मींस अदर प्रॉब्लम्स आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्लियर? And that angle now seen from which view? Front view. So due to that you can write here that is the theta 30 degree. तो अब आपकी यह पूरा लैमिना 30 डिग्री से एंगल बना रहा है, तो इट मींस आपका पूरा लैमिना क्या हुआ कि इस एंगल के ऊपर फ्रंट में आपको बनता हुआ एंगल नजर आएगा इस लैमिना का लाइक दिस। क्लियर? 30 डिग्री विद HP, यस 30 वो VP से हो गया ना, 30 डिग्री विद HP बन रहा है एंगल। ठीक है, ये VP था और HP से बना ये, तो HP से 30 डिग्री एंगल यहाँ पे हमने बना दिया इसको, फ्रंट में VP के साथ पैरेलल रखा और टॉप व्यू हमारे पास क्या आ गया था, एक HP, और सेकंड स्टेज में हमने VP के साथ इंक्लाइन कर दिया और 30 डिग्री पे अब हमने इसको शफल कर देना है लाइक दिस। दैट मेक्स द एंगल 30 डिग्री होल लैमिना। ओके, अब जब पूरा लैमिना 30 डिग्री से साथ एंगल बना रहा है, क्लियर, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में दो चीजें होंगी। एक तो ये कि आपके पास जो लैमिना 30 डिग्री VP से एंगल बना रहा है, क्लियर, दैट इज द होल लैमिना, दिस लैमिना मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद VP। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यस इस केस में ध्यान से समझो। इस केस में अब क्या होगा, अगर सपोज हम इस एज को, स्टूडेंट जो गलती करते हैं एग्जाम में, अगर हम इस एज को, एज किसको, AB को, स्टूडेंट नॉर्मली यही गलती करते हैं, AB एज को 30 डिग्री पे ऐसे रख देते हैं और फिर पूरा लैमिना ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वी आर रॉन्ग, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग इन द केस द एज आल्सो मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद HP। ऐसा नहीं वो कह रहा, ठीक है, ऐसा नहीं वो कह रहा, वो कह रहा पूरी शीट एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो अब जब 30 डिग्री एंगल बना रही है तो एज अब भी कहां फिक्स है, एज अब भी XY पे फिक्स है। यू कैन सी वेयर इज द एज नाउ, द एज अगेन ऑन XY नाउ। क्लियर? सो फर्स्ट हियर वी वांट टू फिक्स द एज को हमें फिक्स करना पड़ेगा।
जब वो 30 डिग्री पे पूरी शीट एंगल बनाती हुई नजर आएगी। तो एच को हम फिर कैसे फिक्स करेंगे? फॉर फिक्सिंग द एच, जहां तो ये मेथड है कि हम इसको ऐसे फिक्स करें यहाँ पे और फिर ऐसे फिक्स करेंगे अगर, तो अब वो पूरा उतना ही एज आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है कि हम इसको अगर सी और एफ को यहाँ ले ले, मेथड नहीं है वैसे बता रहा हूँ, सी और एफ को यहाँ ले ले, तो फिर सी और एफ जो है वो इसका जो ये कह लो कि कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस है, तो वो कंप्रेस डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा और फिर लैमिना जाएगा। क्लियर? तो इस केस को हम फिर कैसे करेंगे? इस केस को अब हम फिर कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज दैट, सोचो थोड़ा, इस केस को हम कैसे करेंगे फिर कि एच ए बी पे लाई करे और पूरा लैमिना आपको सामने से दिख रहा है, पूरा लैमिना आपको ये लाई करता हुआ नजर आएगा, लाइक दिस, ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो एच यहाँ फिक्स करेंगे, फिर एच हम यहाँ फिक्स करेंगे ए बी पे, ए बी पे एच फिक्स करेंगे। क्लियर? क्योंकि एच वो 30 डिग्री और 45 डिग्री जब वीपी के साथ इंक्लाइंड है तो इतना दिख रहा है, इतना, तो इट मींस अब भी हमें एच इतना ही दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि वीपी के साथ इंक्लाइंड है, वीपी के साथ इंक्लाइंड है, और पूरा ये जो लैमिना की शीट है ये 30 डिग्री ऐसे एचपी के साथ आप एंगल बनाती हुई नजर आएगी आपको। सो इट मींस इन दैट केस यू शफल दैट प्रॉब्लम टू हियर। अब ये प्रॉब्लम आप यहाँ शफल करोगे। क्लियर? अब ये प्रॉब्लम जब शफल करेंगे तो इस केस में बीपी के साथ एंगल बन जाएगा आपका। क्लियर? तो इस केस में एंगल बीपी के साथ हम कैसे, ओके, सो लाइट ऑफ हो गई थी, नेक्स्ट मैंने ड्रॉ कर दिया इन बिटवीन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमने इसको रीशफल कैसे किया, रीड्रॉ कैसे किया। तो जैसे कि हम पहले देख चुके थे ऑलरेडी कि एच जब है वो 45 डिग्री विद वीपी हो गया, एच 45 डिग्री विद वीपी था, बट अभी तक पूरा लैमिना परपेंडिकुलर टू एचपी था। नाउ ही सेड द होल लैमिना 30 डिग्री विद एचपी आल्सो। तो एचपी के साथ अगर कोई भी 30 डिग्री एंगल होता है विद एचपी लाइक दैट, क्लियर, तो वो एंगल एचपी के साथ आपको 30 डिग्री एंगल ऐसे बनता नजर आएगा ना, लाइक दिस, 30 डिग्री विद एचपी सपोज दैट इज 30 मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद एचपी। एचपी के साथ सपोज वो 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनता हुआ आपको नजर आएगा, दिस वन। क्लियर? व्हेन ही से दैट इज 30 डिग्री विद एचपी एंड वन ऑफ इट्स एच 45 डिग्री विद वीपी। ओके, तो पूरा एंगल 30 डिग्री आपको फ्रंट में बनता नजर आया। सो ड्यू टू दैट व्हाट वी डू हियर, फर्स्ट वी मेक द एंगल 30 डिग्री विद एचपी। It means we make the angle 30 degree with XY. Clear? So after that we want to redraw or reshuffle this problem to here. It means we want to shuffle this second stage in the third stage. तो यही हमने देखा था कि हम सेकंड स्टेज को जो है वो सेकंड स्टेज के कंप्रेस्ड व्यू को थर्ड स्टेज के गिवन एंगल पे रीड्रॉ करेंगे। तो गिवन एंगल उसने दे दिया 30 डिग्री। So due to that, first we make the angle 30 degree with the XY line because that is with the HP and that is upper side. Okay. So we want to shuffle this figure to here. So how we can shuffle? In that case, जब हमने shuffle करना है तो हमें दो तीन चीजें हमारे दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जब ये shuffle हो रहा है, इसका A और B पॉइंट XY पे लाई कर रहा है, HP पे लाई कर रहा है, ठीक है, तभी वो फ्रंट में XY पे नजर आ रहा था। तो आप यहाँ प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि इसका A और B पॉइंट जो है, अभी भी इसका A और पॉइंट जो B है, ये लैमिना का पॉइंट A और B जो है, ये अभी भी कहाँ लाई कर रहा है? इट्स लाई ऑन द XY लाइन। ये अभी भी XY पे लाई कर रहा है। When the whole lamina making the angle suppose what making the angle 30 degree with HP, then point A and B lie on XY line. HP it means फ्रंट में अभी वो XY पे देखेगा, तो इट मींस ये A और B हमें XY पे शफल करना पड़ेगा लाइक दिस। अब ये A और B पहले शफल कैसे होगा, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसको रीड्रॉ करते टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि इसको शफल कैसे करना है। क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हियर वी फिक्स द पॉइंट O आप कहाँ पे फिक्स करेंगे? O फिक्स करेंगे जो एंगल है, जो HP के साथ एंगल बनाया था प्लेट ने, तभी O पॉइंट वहां पे फिक्स हुआ उस एंगल पे। तो इट मींस हमने यहाँ पे अब इस 30 डिग्री पे O फिक्स करना है। क्लियर? अब 30 डिग्री पे जब O फिक्स करना है तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा
ए और बी जो है वो एक्स वाई के ऊपर आएंगे, ठीक है, दैट शुड बी लाई ऑन एक्स वाई ए एंड बी व्हेन आई शफल द पॉइंट ओ। तो इसको ए और बी को एक्स वाई पे लाई कराने के लिए और ओ को 30 डिग्री शफल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फर्स्ट आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपको कैसे मिलेगा इस फिगर का, पहली बात तो ये, इस फिगर के अगर मैं डायगोनल आपस में मीट कर दूं, आई मीट द डायगोनल ए टू डी like this, I meet the diagonals goes like this, A to D then E to B। तो अगर ये दोनों डायगोनल मीट किए, जहां ये कट करेंगे वहां पे सेंटर पॉइंट डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा, कौन सा, पॉइंट O, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे, पॉइंट O इज हियर, O डैश, ठीक है। अब O से O पॉइंट यहाँ पे मिल गया, O से परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्शन ले ली, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन आएगी वो A और B को सेंटर में कट कर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये भी देख चुके हैं कि वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन जो है वो C और F को भी 90 डिग्री कट करती जा रही है, क्लियर, 90 डिग्री कट करती जा रही है। लेकिन अगर O कहां पे लाई पड़ा है, O C और F पे पड़ा है, O कहां पे लाई कर रहा है आपका, C और F पे, तो इसलिए जब मैंने O फिक्स कर दिया यहां पे, ठीक है, तो डेफिनेटली जितना O से C होगा उतना ही O से F होगा, तो मैं इधर O से F और O से C कंपास खोल के मैं उसको कट कर सकता हूं। बट बिफोर दैट आई वांट टू दिस लाइन C to F, C to F आएगी कैसे, C to F वी नो दैट इज व्हाट, दैट इज द पैरेलल टू द अगेन XY, इट मींस पैरेलल टू द HP, ठीक है। लेकिन पैरेलल टू HP के ऊपर पहले हमें B और A भी फिक्स करना पड़ेगा, तो B और A को लेने के लिए वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O। तो जब हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन O ली सेंटर पॉइंट से, तो वो B और A को सेंटर में कट करेगी, ऐसे इधर ऊपर वो प्रोजेक्शन E और D को सेंटर में कट करेगी, क्लियर, एंड इट पास फ्रॉम द C एंड F आल्सो फ्रॉम इट्स सेंटर, क्लियर। तो मैं, और वो प्रोजेक्शन क्या है, दैट इज द 90 डिग्री, दैट इज द 90 डिग्री विद व्हाट, विद द बेस, विद द बेस। और अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूं, O कहां पे आया, O 30 डिग्री सेंटर पे फिक्स था, तो इट मींस अगर O वाली लाइन 30 डिग्री हो रही है तो ये प्रोजेक्शन इसके 90 डिग्री है, तो इट मींस मैंने 30 डिग्री O को क्यों किया, C और F वाली लाइन को मैंने उसको O पॉइंट को मैंने जो है 30 डिग्री लाइन पे क्यों फिक्स किया, बिकॉज द होल लैमिना मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद HP। तो जहां पे मेरे पास 30 डिग्री पे मैंने O फिक्स किया है, वहां से मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन O फिक्स कर दिया आपने, और O की जो लाइन थी वो C और F क्या थी, दैट इज 30 डिग्री, इट मींस उस 30 डिग्री का मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन नीचे गिरा दिया इस तरफ, आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लोअर साइड। तो जहां मैंने उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फॉर्म करवाया विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, लाइक दिस, विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, तो ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन जाएगा कैसे, आपके ड्राफ्टर की हेल्प से, ठीक है, आपके ड्राफ्टर की हेल्प से। इट मींस अगर आपका ड्राफ्टर का एक स्केल 30 डिग्री इधर एंगल बना रहा है, तो अपोजिट स्केल ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट स्केल जहां जाके मेरे पास कट किया, कहां पे, XY पे, वहां पे मेरे पास बॉटम का O पॉइंट लोकेट हो जाएगा, यहाँ पे सपोज हियर वी आर द बॉटम पॉइंट O, सो O इज हियर। तो इस बॉटम पॉइंट O से जितना B होगा उतना ही A होगा, आई कट फ्रॉम दैट A एंड B फर्स्ट, तो मैंने A और B को कट कर दिया, क्लियर, यहां तक समझ आ गया, A और B को कट कर दिया। और ये क्या था, ये मैंने O किसके ऊपर लिया, परपेंडिकुलर के ऊपर, जहां कट किया वहां A और B कट हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जितना O से ये डिस्टेंस था बेस का, दिस वन, O टू बेस दिस वन, उतना ही O से अपर D और E के लाइन का होगा। तो मैंने सेम कंपास खोली, क्योंकि आप रीड्रॉ कर रहे हो उसको, तो सेम ऊपर कट कर दिया मैंने, कहां पे, ऊपर, ये जो अपोजिट प्रोजेक्टर जा रहा है रेड लाइन O वाली, तो वहां पे मैंने कट करा दिया। तो वहां जब मैंने उसको कट करा के मेरे को क्या हुआ कि इसकी 30 डिग्री होने पे मैक्सिमम इतनी हाइट हो सकती है, वो मिल जाएगी मेरे को लैमिना की, क्लियर। एंड वी नो द A एंड B आर पैरेलल टू D एंड E, तो A और B किसके पैरेलल है, XY के, तो XY के पैरेलल वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइक दिस आई ड्रॉ अ लाइन, क्लियर, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू XY, एंड फ्रॉम दैट साइड अगेन जितना O सेंटर से B है और A है, उतना ही ऊपर सेंटर से E और D होगा,
तो आई कट हियर ई एंड डी बोथ साइड, तो ऊपर भी दोनों पॉइंट मिल गए। और सेम ओ वाली जो लाइन है हमारे पास, दिस लाइन सी और एफ, दैट इज आल्सो पैरेलल टू बी एंड ए, तो बी और ए के पैरेलल ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और जितना ओ से सी होगा उतना ही ओ से एफ होगा, सो वी कट बोथ साइड ओ टू एफ एंड ओ टू सी। तो ऐसे करने पे मेरे पास 6 के 6 पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। कौन कौन से पॉइंट? A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and F dash, and we meet that point in straight line। जब इन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मैंने मीट कर दिया, तो ये जो आपका हेक्सागोनल लैमिना है, इसका एक एज 45 डिग्री विद VP है, एंड द होल शीट ऑफ दैट लैमिना मेकिंग द एंगल, वन एज इज 30 डिग्री विद VP एंड द होल शीट मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद HP फ्रॉम दिस साइड। तो ये एंगल HP से बनाने के कारण अब हमें डेफिनेटली फ्रंट में देखो, एक चीज ध्यान से देखो, ऐसे था तो इतनी हाइट नजर आ रही थी, ठीक है ना, ऐसे था तो इतनी हाइट नजर आ रही थी, मैं अपना हाथ में ही रहने देता। और अब क्या है कि अब ये 30 डिग्री HP हो गया, तो 30 डिग्री HP होने के कारण ये हाइट नजर नहीं आई, अब ये हाइट आपको नजर आ रही है दिस वन। अब आपको ये सेकंड हाथ जितनी हाइट नजर आ रही है फ्रंट में, तो दोनों में इतना गैप आ रहा है, क्लियर। तो ये गैप आपके पास ये मेंटेन हुआ, दोनों में जितना गैप, पहली हाइट इतनी थी, सेकंड हाइट इतनी आ रही है, क्लियर, बिकॉज ये 30 डिग्री विद HP हो गया। सो विद HP होने के कारण यू कैन फाइंड आउट इट्स compressed shape in the front view also, क्लियर। मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्यों हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकल भी अभी मैं शो करता हूँ शैडो में, देखो कैसे हो रहा है। यू कैन सी हियर, प्लीज सी ऑन द बोर्ड, यू कैन सी हियर when that is parallel its two shape on it, ठीक है, and when that is one edge inclined to VP, तो उसमें एक एज 45 डिग्री हो गया उसका बेस का, तो ये उसकी कंप्रेस शेप आ जाएगी आपके पास। So you can see the compressed shape here on the board, clear? But when that compressed shape not go here again, ये compressed shape यहाँ पे नहीं जा रही है। अब क्या कह रहा है, पूरा लैमिना अभी क्या है, perpendicular to HP है, लेकिन अब वो कह रहा है कि 30 डिग्री विद HP हो गया लैमिना। So you can see practically on the board। तो अब आपके पास वो compressed shape लैमिना की क्या हुआ कि वो ऐसे नजर आनी शुरू हो जाएगी। It means that is your, अगर मैं इधर से कहूं कि 30 डिग्री कंप्रेस हो गया, सपोज ऐसे है ना परपेंडिकुलर, ऐसे था और ये था, और मैं कहूं कि ये 30 डिग्री ऐसे हो गया कंप्रेस, तो ये कंप्रेस शेप आपके पास बोर्ड पे ऐसे आनी नजर हो जाएगी शुरू, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो ऐसे ही कुछ शेप आपके पास वहां पे, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऐसे ही कुछ शेप आपके पास वहां पे नजर आ रही है, क्लियर, इन द विच व्यू, इन द फ्रंट व्यू, यू कैन सी दिस शेप in this shadow in the front view, क्लियर। तो अब ये जब इंक्लाइंड हो जाएगा, दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो जाएगा, एक एज उसका VP पे और होल शीट विद HP, तो ये फ्रंट व्यू तो हमने फाइंड आउट कर दिया कितना कंप्रेस नजर आएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू कंप्रेस्ड। अब टॉप से भी ये कंप्रेस नजर आएगा ना, क्यों? क्योंकि लैमिना मेकिंग द एंगल विद HP के साथ लैमिना क्या है, एंगल बना रहा है। अगर HP के साथ पैरेलल होता तो ट्रू शेप नजर आता, इज इट क्लियर ना। अब लैमिना HP के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो HP के ऊपर भी वो कंप्रेस शेप नजर आएगा। जैसे यहाँ VP के साथ H ने एंगल बनाया था, तो पूरी H इज बेस ऑन दैट लैमिना, तो पूरी शीट जो है वो VP के साथ एंगल बनाई, ठीक है, तो हमें VP में कंप्रेस शेप नजर आई थी सेकंड स्टेज में, क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि पूरी शीट पैरेलल टू HP, ऐसे नहीं है, पूरी शीट इंक्लाइन टू HP है ऐसे, तो टॉप से भी कंप्रेस शेप नजर आएगी, डेफिनेटली आएगी। बट वन एज, अब वो कंप्रेस शेप ढूंढनी कैसे है, अब वो कंप्रेस शेप ढूंढनी है कि लैमिना दोनों प्लेन के साथ अब इंक्लाइन होगा, क्योंकि हम केस कर रहे हैं लैमिना इंक्लाइन टू बोथ मींस व्हाट हियर, बोथ मींस इंक्लाइन टू HP एंड VP। कंडीशन उसने ले दी कि VP के साथ एक H इंक्लाइन है 45 डिग्री और HP के साथ पूरी शीट 30 डिग्री इंक्लाइन होगी। तो ये कंप्रेस शेप अब हमने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम इट्स टॉप व्यू। तो अब टॉप व्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फ्रंट व्यू फाइंड आउट कर दिया, अब फ्रंट की प्रोजेक्शन ले लेंगे फ्रंट, क्योंकि टॉप कब आएगा, जब लैमिना VP के साथ तो इंक्लाइन है ही है और HP के साथ भी लैमिना इंक्लाइन हो रहा है, तब आप इसको टॉप से देख रहे हो। तो जब HP के साथ इंक्लाइन हो रहा है, तो अब आपके पास फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, कंप्रेस दिख रहा है, यू कैन सी हियर दैट इज द कंप्रेस्ड व्यू।
यहाँ ये वाला कंप्रेस शफल किया, एक एंगल पे शफल हो गया, वो 30 डिग्री विद एचपी जो दिया था। तो ये टॉप का कंप्रेस्ड व्यू अब हमने फाइंड करना 90 डिग्री फ्रॉम इट्स टॉप कि ये कितना कंप्रेस्ड आएगा। ठीक है, तो ये कब आएगा 90 कंप्रेस्ड टॉप व्यू? जब हम फ्रंट के कंप्रेस्ड व्यू को 90 डिग्री देखेंगे। तो फ्रंट का कंप्रेस्ड व्यू आपके पास ये आ गया था, दिस वन इज द कंप्रेस्ड व्यू इन विच व्यू? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ये कंप्रेस्ड व्यू आपके पास नजर आ गया था। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने ये यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया था, शफल कर दिया था, ऑलरेडी आपने कवर कर दिया। अब हमने यहाँ पे नाउ वी फाइंड हियर ऑन द बोर्ड वी फाइंड हियर द टॉप व्यू ऑफ फाइनल स्टेज, द टॉप व्यू ऑफ दैट लैमिना। अब वो कैसे फाइंड आउट करनी है? सी दिस टॉप व्यू, जैसे मैंने बोला था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लीज सी ऑन दिस टॉप व्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कर्टन तो थोड़ा उधर कर दो ताकि लाइट आ जाए यहाँ। सो टॉप व्यू का कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे अगर अब हमने टॉप व्यू फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे पहले हम 90 डिग्री प्रोजेक्शन फॉल कराएंगे। कहाँ से? फ्रंट व्यू से। ठीक है, फ्रंट व्यू से हमने 90 डिग्री सारी प्रोजेक्शंस को फॉल करवाया फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू, फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू। और सारी प्रोजेक्शन आप ए से स्टार्ट करोगे ताकि कोई भी प्रोजेक्शन आपकी रह ना जाए। तो we follow the projection from A की प्रोजेक्शन आ गई। मैं थोड़ा दूसरा बात करके यूज कर रहा हूँ, ये लाइट हो गया बहुत। सो we draw the projection from A this side here. Why we draw the projection from this side here, A here, from here? Because we see that we know from its top. Clear? After the A we can draw the projection B. So we draw the projection B here. Clear? Clear this one? Projection A and projection B. Please focus on the board now here. So projection A and projection B, and after that we draw the projection C from this side. And again you can see the projection D. D C से थोड़ी outer की तरफ, बाहर की तरफ जा रही projection. So we have the projection D from here like this. And the second last projection is E. Again from the point E. अब देखो कुछ प्रोजेक्शन दोबारा बीच में आ रही है, इसीलिए मैंने बोला कि आप सारी प्रोजेक्शन जो है वो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करोगे अल्फाबेटिकली, चेन A to D, B to C, C to D like that, ताकि कोई भी प्रोजेक्शन आपकी छूटे ना। तो लास्ट प्रोजेक्शन इज F। तो हमने सारी 6 पॉइंट है, यू कैन अगेन काउंट हियर 6 प्रोजेक्शन आ रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो A से लेके आपकी सारी प्रोजेक्शन आ गई। क्लियर? एंड नाउ फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू वी ड्रॉ द ऑल प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस साइड। अब इस तरफ से हम सारी प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम इट्स टॉप व्यू लाइन। सो हियर वी हैव द प्रोजेक्शन C, then D, and after that we have the projection B, D and B. So I will try कि मैं उसको प्रॉपर पैरेलल टू XY लेके जाऊँ। मेरे पास अभी ड्राफ्टर नहीं है यहाँ पे, ओनली आई हैव स्केल, बट आई विल ट्राई कि मैं प्रोजेक्शंस को प्रॉपर ड्रॉ कर पाऊँ आपके लिए। सो वी हैव द प्रोजेक्शन E and A, and last projection is F. Last projection is from where? From the point F. So this is here last projection F up to the point F again. Okay. So I draw the all projection from this side again. Yeah, I draw the all projection from this side again. Okay. So after draw the projection, you can meet the points. अब जब हमें भी ये पॉइंट मीट करने हैं, तो जैसे हमने पहले सीखा था कि पॉइंट मीट करते टाइम हमने देखना कि जिस कैटेगरी का पॉइंट है उस कैटेगरी से ही मीट होगा। कैसे? सीट यहां से हमारे पास प्रोजेक्शन पॉइंट आ रहा था ए की प्रोजेक्शन फर्स्ट वन इज द ए। तो इधर से हमने देखना ए की प्रोजेक्शन कहां जा रही थी, इधर से ए और ई इकट्ठी प्रोजेक्शन ये जा रही है सेकंड वन। तो जहां जाके वो टच की ए वाली प्रोजेक्शन ए के साथ, सपोज ए की करंट वायर इधर से आई, ए की करंट वायर इधर, करंट से मिला, स्पार्क हुआ, पॉइंट लोकेट हो गया आपका। सो हियर वी हैव द A1। अब यहाँ पे पॉइंट चेंज होंगे,
पॉइंट क्यों चेंज होंगे? क्योंकि अभी तक इन दोनों व्यूज में हमें टॉप व्यू दिख रहा था एक एज व्यू में, लेकिन अब यहाँ पे टॉप व्यू आएगा एक कंप्रेस्ड शेप में। सो व्हेन द व्यूज आर चेंज देन द पॉइंट्स आर चेंज्ड। तो ए डैश नहीं लगा सकते क्योंकि टॉप व्यू है, तो उसको चेंज करने के लिए हमने कर दिया A1। क्लियर? देन नेक्स्ट बी का प्रोजेक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बी का प्रोजेक्शन इधर से ये जा रहा है, सेकंड वन फ्रॉम द टॉप, सेकंड वन बी प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस साइड, और यहां से बी का प्रोजेक्शन आ रहा है फ्रॉम इट्स एक्सवाई लाइन, यहां से ये। तो ये जहां क्या टच किया वहां पे लोकेट हो गया B1। प्रॉपर पॉइंट आपने स्टेप बाय स्टेप लोकेट करने इन द चेन, ताकि कोई भी प्रोजेक्शन छूटेगा बीच में, नहीं तो यहाँ पे शेप कभी सही नहीं आएगी अगर प्रोजेक्शन छोड़ दिया आपने कोई भी। So here we have the point C, second one projection from its front view, and from its top view, that is the first projection for the C. So here we have the C1. ठीक है? So this projection for C1. Now next we want to look at point D, and where is D? D is on the top. तो top की projection सबसे outer projection आ रही है जैसे, and from this side this is the second projection from D. So this locate the point D1. Clear? Same ऐसे second last point is E. E is here. E यहाँ पे आ रहा है, ये ध्यान से देख के चलना है कौन सी projection आ रही है। E here, and from this side this is the last second projection from the horizontal side. So this is E. So here we locate the point E1 is here. So E1 is here, and last projection is F. So F is, this is the second last projection from the vertical side, and from the horizontal side that is the last projection F. So from that side this is the second last. So here we locate the point F1. So after locating the point, again check once you locate the all points A to F or not. So A, B, C, D, E, F. So when you check then meet in straight line, because we have which type of lamina? We have the straight edges lamina. So when we have the straight edges lamina, then that points always should be meet in the straight line. So meet it in straight line A to B. So we meet it A to B, then B to C. So meet again B to C is here, then C to D. C to D is here, then D to E, and D to E is here, and then E to F. So you can meet E to F from this side. E to F we have here, E to F, and then F to A. So you can meet here F to E. So this is the compressed shape. This black compressed shape you can find it in its top view. When the one edge of your hexagonal lamina lie on HP and it's made the angle 45 degree with VP, and the whole lamina making the angle 30 degree with HP. So this is your final compressed shape. You can find it with the help of this method. Clear? So this is the shape, that is the third stage. Which stage? Second stage. That is the third stage, compressed view. Compressed view on which plane? On the top view. And on which plane? On HP. So you can find it. So this is these two compressed shape is the final answer of your problem when your lamina is inclined to both, means one edge of the lamina making the angle 45 degree with HP, means one edge of the lamina making the angle 45 degree with HP, and the whole sheet of the lamina making the angle 30 degree with HP. So in the final stage, the top view is also a compressed view because the lamina making the angle 30 degree with HP. Clear? And again, the front view is also as a compressed view because when the edge making the angle 45 degree with VP, तो उसी एज के ऊपर पूरी शीट है, तो अगर एज 45 डिग्री VP से एंगल बना रहा है
तो पूरी शीट भी VP से 45 डिग्री एंगल बनाएगी. सो ड्यू टू दैट इज द कंप्रेस्ड व्यू इन द फ्रंट व्यू इन द सेकंड स्टेज. क्लियर. तो इस मेथड से ये आपका जो सारी प्रॉब्लम है ये कवर होगी. क्लियर. तो एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं. When the lamina is inclined to both, then that can be drawn in 3 stages: first stage, second stage, third stage. Clear? In the first stage, we assume the lamina is what? The lamina is parallel to the inclination plane, and in that case, one view of its lamina, one view of the lamina is as a true shape and size, and the other view as a edge view, as a straight line. In the second stage, we tilt the edge view of the first stage. We tilt the edge view of the first stage. In the second stage, we tilt the first stage edge view in the second stage at the given angle with the VP. At 45 degree दिया तो given angle with the VP. And after that, we draw the vertical projections from the top view, edge view of the second stage, and horizontal projection from the true shape of the front view first stage. And you can find it with that compressed view in the second stage front view. In the second stage front view, you can find out its compressed view. And in the third stage, we again redraw. In the third stage, we redraw the compressed view of the second stage at the given angle, clear, of the third stage. And on that angle, you can fix the edge, the diagonal, or maybe the diameter of your object. So it means in the third stage, final view, second view, in the third stage front view, you can redraw the second stage compressed view object at the given angle. Clear? And you can redraw means you can shuffle the second stage view at the given angle. So with that, I shuffle this one. Clear? And for the final top view, we draw the vertical projections from the compressed view at the given angle and the horizontal projection from the edge view. And where the all points are intersect to each other, they locate the points. And after locating that points, we meet with the help of light. And this is your final compressed view in the top view of the third stage on HP. So with that, you can draw this problem. With this method, you can draw the problem when the lamina is what? Inclined to VP and inclined to HP. तो इस केस में हमने VP के साथ पहले एंगल लिया है और HP के साथ हमने बाद में एंगल लिया है, क्योंकि उसने पहली स्टेज में VP के साथ H का एंगल फिक्स कर दिया था, इसलिए हमने उसी प्रॉब्लम को वहां से स्टार्ट करके एंड तक ड्रॉ करने की कोशिश की है. क्लियर. अगली जो कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट स्टेप में, उसमें हम पहले HP से एंगल लेंगे और सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में फिर हम थर्ड स्टेज में फिर हम VP से एंगल लेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. क्लियर. सो दिस इज द केस व्हेन द होल lamina is inclined to both HP as well as VP, or you can say with VP as well as HP. क्लियर. लेकिन ये इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज टेकिंग द एंगल फर्स्ट VP after that HP, or maybe always taking the angle with first HP after that VP. No, you can take the angle with anyone first. If you know the method, then you can take the angle with anyone first. लेकिन आप चाहे यहाँ पे VP से पहले एंगल ले लो, चाहे यहाँ HP से पहले एंगल ले लो, लेकिन फाइनल स्टेज में दोनों व्यू जो आपको कंप्रेस मिलेंगे वो सेम वैसे ही मिलेंगे, उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया के मिलेंगे. Clear? You can take the angle with any plane first, but always try to go as per the statement. जैसे जैसे स्टेटमेंट में चलता जा रहा है वैसे वैसे आप चलते रहो पीछे पीछे, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना. क्लियर. अगर स्टेटमेंट में पहले VP के साथ एंगल कह रहा है, इन द स्टेटमेंट सपोज ही से फर्स्ट मेक द एंगल विद VP, देन ड्रॉ विद फर्स्ट VP, आफ्टर दैट HP. अगर स्टेटमेंट में पहले HP के साथ एंगल कहा, देन ड्रॉ विद फर्स्ट HP, आफ्टर दैट VP.
So go as per the statement. It is always better. Clear? But otherwise, you go the angle with any plane first, but the end views should be in the both cases are same. End view उसके same ही होंगी. Final stage का थर्ड स्टेज का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों आपको सेम ही मिलेंगे. चाहे आप HP से एंगल ले लो, चाहे पहले VP से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? बट फिर मैं कह रहा हूँ कि गो फॉर द स्टेटमेंट. ठीक है, गो as per the statement, it is always better. Clear? Okay, so with that this concept is finished. आज हमने अगर 3 स्टेज तक पहुंच गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेजेस कर ली हैं, 3 केस कर लिए हैं. इन द फर्स्ट केस अगर मैं इतना ही केस फॉलो कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान से समझना, अगर हम इतना ही केस फॉलो कर रहे हैं, इट मींस अप टू हियर दिस साइड, सेकंड और थर्ड स्टेज नहीं फॉलो कर रहे, इतनी स्टेज फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम एक स्टेज फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, मींस एक स्टेज फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा एक केस हुआ है. एज पर द कंसेप्ट 1 केस हुआ. अगर हम यहां तक चले गए तो एज पर द कंसेप्ट हमारे 2 केस हो गए, और अगर हमने ये भी फॉलो कर ली तो एज पर द कंसेप्ट हमारे 3 केस हो गए. तो टोटल इस चैप्टर में 6 केसेस हैं. तो 3 केसेस हमने एक ही प्रॉब्लम में डिस्कस आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप साथ ही करवा दिए, ताकि यहां तक आप समझ चुके थे. इसको आगे सेकंड केस तक लेके जाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ. और अगर आप सेकंड स्टेज तक समझ चुके थे तो आज हमें इसको थर्ड स्टेज तक लेके जाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ. तो आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ समझ आ रहे, इसलिए मैंने एक पूरा इंक्लाइन टू बोथ कवर कर दिया है. ठीक है, लेकिन ये अभी केस कितने हुए? केस अभी हमारे पास सिर्फ 3 हुए. ठीक है, तो कल फिर हम अगले केस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वहां से स्टार्ट करके फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे फिर दूसरा केस करके लास्ट केस में फिर हम तीसरे केस तक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. ठीक है, इन द थर्ड केस से. क्लियर? तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे कवर करेंगे. ओके, और टुडे इज पब्लिक डे. आज पब्लिक डे था, इसीलिए मैंने लेक्चर का स्टार्टिंग जो है वो राष्ट्रीय गीत से स्टार्ट किया था. तो बीच में लाइट भी चली गई थी, इसलिए हो सकता है लेक्चर आपके पास 2 पार्ट्स में पहुंचेगा ये. ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इस दोनों वीडियो को क्लब करके इकट्ठी करके एक ही पार्ट में भेजूं. अगर नहीं हो पाया तो फिर ये दोनों पार्ट्स में 2 डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास आएगी ये थर्ड स्टेज वाला केस. क्लियर? तो वो दोनों अलग अलग पार्ट को देख लेना. मैं उसको पार्ट 1 या पार्ट 2 आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा यूट्यूब के ऊपर. क्लियर? और रिपब्लिक डे था, आज भी हमने छुट्टी नहीं की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वर्क इज मस्ट. ठीक है, शोज नेवर स्टॉप, शो शुड बी गो ऑन ऑलवेज. ठीक है, तो शो चलता ही रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए. ऐसे लाइफ चलती रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए. जब तक हम जिंदा है कुछ ना कुछ नया हमें करते रहना चाहिए हमेशा. दिस इज ऑलवेज बेटर फॉर द लाइफ एंड बेटर फॉर द अस. ठीक है, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच. और दूसरा मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो. और अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो स्टार्ट टू एंड सारा लेक्चर फॉलो करो. और यूट्यूब फॉलो करने के लिए माय यूट्यूब आईडी इज प्रोफेसर बनोट, PROFBHANOT बनोट. एंड माय मोबाइल नंबर फॉर एनी क्वेरी, माय मोबाइल नंबर 9417199660. तो आप यूट्यूब पे भी आपको मैसेज, आप चैप्टर पूरा आपको टॉपिक या पूरा जो भी लेक्चर है कैसा लगा आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो. पर्सनली मेरे को मैसेज भी सेंड कर सकते हो. और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए, या मेरे को मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है, तो लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि लेक्चर को स्टार्ट से एंड पूरा फॉलो कीजिए. अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है तो लेक्चर स्टार्ट से एंड प्लीज़ 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 पूरा फॉलो कीजिए. तो दूसरा, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो पर्सन लॉकडाउन में घर बैठे हैं वो भी इजीली इसको कवर कर पाए. ठीक है, जैसे अभी आज की न्यूज़ है कि अभी जो है वो फेब तक आई थिंक 31 जैन और फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आई थिंक बढ़ा दिया गया है कोरोना का. फिर मीन्स टाइम, कोरोना का टाइम तो बढ़ ही रहा है, मीन्स लॉकडाउन का टाइम बढ़ा दिया गया है. एंड स्कूल सेंटर्स एंड ऑल थिंग्स आर क्लोज्ड. सो जो घर पे बैठे हैं स्पेशली उनके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ. और
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को पूरा फॉलो कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए. सो अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.